construction part. Now first of all, we write all the measurements what they have given here. They have given the quadrilateral, and in the quadrilateral they have given the measurements. That is, first of all they have given AB is equal to 4.5 centimeter. Okay. Then they have given BC, that is equal to 5.5 centimeter. ABBC, and they have given the CD, third side, that is 4 centimeter. AB equals to 6 centimeter. And finally, they have given AC, which is a diagonal, 7 centimeter. Okay. Now in this case, students, first of all what we have to do is we need to construct a rough figure. एक रफ फिगर हमें इस तरह से बनाना है. ओके. और सारी मेजरमेंट्स वहां पे हमें लिख डालनी है. ठीक है. तो यहाँ पे लिख देते हैं A, B, C and D. सारे मेजरमेंट्स वहां पे लिखेंगे. AB is 4.5. Then we have BC 5.5. Then we have CD 4 centimeter. Then we have AD, that is equal to 6 centimeter. And lastly we have one diagonal, that is AC, and they have given diagonal is actually how much? 7. इस तरह से एक रफ फिगर बनाओगे स्टूडेंट्स तो आपको सारी आइडिया एकदम से क्लियर हो जाएगी. देन वी विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन पार्ट. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें एक बेस ड्रॉ करना होता है. सो इन दिस केस यू कैन टेक AB as base. AB they have given 4.5 centimeter. First of all, what we will do with the scale and pencil, we will draw 4.5 centimeter का एक base draw करोगे, that is AB. We will mention here A and here B. Now students, B to C, how much? 5.5. You will take a rounder, scale पे measurement लोगे 5.5 centimeter. यहाँ पे अपने rounder का pointer रखोगे students और एक simply एक arc जो है इस तरह से ड्रॉ करोगे. तो एंड इसके बाद में स्टूडेंट्स वी हैव A to C, दैट इज डायगोनल 7 सेंटीमीटर. तो आप अगेन राउंडर को स्केल में रख करके यू विल टेक 7 सेंटीमीटर एज द मेजरमेंट और फिर उस राउंडर का पॉइंटर A पे रखना है और अपनी प्रीवियस आर्क को इस तरह से कट कर देना है. वो जो पॉइंट हमें मिला है स्टूडेंट, दैट इज योर C. ओके. यू विल सिंपली जॉइन A to C and B to C. This is you will write the information again. जैसे जैसे information दे रखी है. ये 7 centimeter दे रखा हमने. Now you see A to B how much? 6 centimeter. You will take rounder में 6 centimeter. From A you will mark a arc. Again B to C और C to D they have given 4 centimeter. Rounder में 4 centimeter लेना है. Pointer को C पे रखना है और इस तरह से arc कट कर देना है. And this is your point D. Simply join B to C and B to A, and you will write the measurements here 6 centimeter and this is your 4 centimeter. तो ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो स्टूडेंट जब भी 4 साइड एंड वन ऑफ द डायगोनल्स दे हैव गिवन. एंड इवन डायगोनल को भी आप जो है बेस मान करके कंस्ट्रक्शन जो है स्टूडेंट्स कर सकते हो. ओके. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. रेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन पार्ट हमारा इस तरह से ही कंप्लीट करना है. ओके. नाउ वी आर मूविंग बैक टू द मेन सम. Okay, the rest of the construction you can do here. इसके बाद में students we will do the one more sum here, that is graph वाला एक sum ले लेते हैं. ठीक है students, ये graph वाला जो sum है वो statistics वाला जो chapter है that is data handling उसमें से है. ठीक है. आपको graph को understand करना है. ठीक है. और उसके basis पे आपको कुछ questions के answer करने हैं. You see the question I'm reading, a number of hours for which the students of a particular class watch television during holiday is known through the given graph. एक ग्राफ आपको दे रखा है और ग्राफ पे से आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? हॉलिडेज के टाइम पे यानी कि छुट्टियों के टाइम पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने घंटे तक टेलीविजन देखते हैं. तो देखो ग्राफ को हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. एक्स एक्सिस के ऊपर दे रखा है नंबर ऑफ आवर्स. ठीक है. या फिर आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे. एक दिन में स्टूडेंट्स कितने घंटे तक जो है टेलीविजन देखते हैं वो एक्स एक्सिस पे दे रखा है. दैट मींस आवर्स जो है वो एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. ठीक है. तो यहाँ पे अलग अलग बार से हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कितने स्टूडेंट्स जो है 4 घंटे तक देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स 32 आवर्स तक पर डे जो है टेलीविजन देख रहे हैं. एंड फ्रॉम हियर द फर्स्ट क्वेश्चन which comes is for how many hours did the maximum number of students watch TV. ठीक है ना.
सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कितने घंटे तक टेलीविजन देखते हैं? जब इन बार को आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो आप देखो यहाँ पे 32 है जो है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर। ओके, सो 32 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वाचिंग द टेलीविजन फ्रॉम 4 to 5 आवर्स। उस बार को नीचे की तरफ लोकेट करोगे ना, तो 32 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वाचिंग टेलीविजन फ्रॉम 4 to 5 आवर्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम टेलीविजन देखा है? तो स्टूडेंट्स 4 घंटे तो यहाँ पे हो जाते हैं 3 to 4 आवर्स, ठीक है? तो 3 से 4 घंटे तक, ओके। फिर बाद में 4 से 5 घंटे तक। हमें सिर्फ ये पता करना है कि लेस देन 4 आवर्स। तो लेस देन 4 आवर्स यानी कि इससे पहले आपको सारे डेटास मिलेंगे। 4 + 8 + 22 करोगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 4 घंटे से कम टेलीविजन देखते हैं हर रोज। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन हियर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5 घंटे से ज्यादा टेलीविजन देखते हैं हर रोज? तो देखो 5 आवर्स यहाँ पे है और 5 घंटे से ज्यादा की बात हो रही है, तो देखो 5 to 6 आवर्स देख रहे हैं 8 स्टूडेंट्स, और 6 to 7 आवर्स तक देख रहे हैं कितने स्टूडेंट्स टेलीविजन? 6 स्टूडेंट्स। तो 8 + 6 हाउ मच विल बी दैट? 14। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि 5 घंटे से ज्यादा टेलीविजन देख रहे हैं वो हो जाएंगे उनकी संख्या 14 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो आपको ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, एंड देन आपको जो उसमें से आंसर देना है, जो भी क्वेश्चंस पूछा है उसको आंसर देना है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू द चैप्टर नंबर 8 हियर। चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 2 वी आर टेकिंग अ वर्ड प्रॉब्लम हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स दे हैव गिवन अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक मैन है, उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, और उसकी जो न्यू सैलरी है इंक्रीज होने के बाद में वो 1,54,000 है, राइट? हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी वो हमें फाइंड करनी है, राइट? तो इस तरह के सम को हम कैसे करेंगे? लेट्स चेक। नाउ सी व्हाट दे हैव गिवन, इंक्रीमेंट इन द सैलरी दे हैव गिवन 10%, दैट इज 10%, ओके। एंड न्यू सैलरी कितनी है? New salary is 1,54,000. Only these two information they have given, and we have to find the original salary. We don't know what is the original salary, so what we will assume, let the original salary be rupees X. हमने ओरिजिनल सैलरी को क्या मान लिया है? ₹X मान लिया है, ठीक है? अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की जो न्यू सैलरी है वो एक्चुअली कैसे बनती है। न्यू सैलरी ओरिजिनल सैलरी प्लस उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, ओरिजिनल सैलरी प्लस जो उसमें इंक्रीमेंट हुआ ओरिजिनल सैलरी में, और फिर बन जाती है इंक्रीज होकर के न्यू सैलरी। ओके फाइन। अब इंक्रीमेंट कितना है स्टूडेंट? इंक्रीमेंट है 10%। किसका 10%? ओरिजिनल सैलरी का 10%। ओके, तो एक एक करके हम यहाँ पे वैल्यूज पुट इन करेंगे। ओरिजिनल सैलरी को हमने कितना माना है? x, तो उसकी जगह पे हमने लिखा x, प्लस इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीमेंट 10% का इंक्रीमेंट, 10% किसका 10%? 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, and that will give you the new salary. New salary कितनी है? They have given you 1,54,000. Okay students, now आगे इसके बाद में x plus 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ओरिजिनल सैलरी को हमने x माना है तो हमने वैल्यू पुट इन कर दी, और यहाँ पे 1,54,000। अब देखो आपके सामने स्टूडेंट्स इक्वेशन का फॉर्मेशन हो चुका है, and we need to solve this equation. So this 0 and this 0 will get cancelled. आगे के steps I will show you. Now see, you will get like this simplified version जो है इस तरह हो जाएगा, 1 into x you will get x only upon 10, it will give you. Now we know that x plus x upon 10, x plus x upon 10, how much will you get?
11x upon 10, that is equal to 1,54,000. Okay, now to find the value of x अपनी जगह पे रहेगा और 1,54,000 11 upon 10 will go to the right hand side, रेसिप्रोकल हो करके 11 upon 10 का हो जाएगा 10 upon 11. ठीक है, अब 11 1 जा 11 और यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पे भी 11 1 जा 11, बचा 44,000. सो 4 टाइम्स में you will get 44 and the rest of the 3 zeros and into 10. So finally x will be equal to 1,40,000. 1,40,000 rupees was the original salary. इस तरह से आप जो है ये सबको सॉल्व करते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस लाइक फाइंड द प्रोडक्ट. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उसमें हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है -4p into 7p. हाउ विल यू डू दैट? -4p into 7p. -4p और 7p, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है 4p into 7p. सो हाउ विल यू डू दैट? नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे और जो वेरिएबल्स है वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे. तो माइनस साइन तो वैसे भी रहना है और 7 4 जा 28 और p into p you will get p square. ये लोग प्रोडक्ट हो गया. ठीक है ना, तो इस तरह से आपको सम जो है सॉल्व करना है. नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं. इस तरह से आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करके भी देखना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द चैप्टर नंबर 11 हियर. राइट द फॉर्मूला. आपको सम तभी आएंगे स्टूडेंट जब आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आएंगे. तो एरिया ऑफ स्क्वायर वी नो साइड इनटू साइड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. राइट, तो ये सब फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए. कुछ मैंने बहुत ही सिंपल वाले सम्स भी यहाँ पे जो है डाल रखे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की तरफ बढ़ते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द चैप्टर नंबर 12 हियर, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, और यू विल से एक्सपोनेंट एंड पावर्स. ये चैप्टर को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आनी चाहिए. ठीक है, चैप्टर 13 स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वाला चैप्टर है. नाउ इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स फर्स्ट सम है, दैट इज अ मशीन in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? यानी कि 6 घंटे में 840 बॉटल्स फिल हो जाती है, तो 5 घंटे में वो मशीन कितनी बॉटल्स को फिल करेगी? राइट, तो ऐसे वाले सम्स को हम कैसे करते हैं? 840 in 6 hours. राइट, ओके. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लाइक दिस in 6 number of hours. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉटल्स. ठीक है, in 6 hours it fills 840 bottles. In 5 hours it fills how many bottles? That is the question. ऐसे वाले सम को हम कैसे करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, that is 8 into 840 into 5 divided by 6. Okay, now इसको हम कैंसिल कर देंगे. 2 3s are, this will be 4 2 0. Again 3 1s are 3. Then we have 3 4s are 12 and 1 0. When you multiply with 5 you will get 700. So the answer is 700 bottles. In 6 hours it fills 840 bottles. In 5 hours it will fill 700 bottles. इस तरह से सम करना है. Now next chapter, that is चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है. उसमें फर्स्ट सम आई एम डूइंग, दैट इज 7x minus 42. वी नीड टू फैक्टराइज दिस 7x minus 42. सो 7x minus 42, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 7 into x minus 42 को हम लिख सकते हैं 6 into 7. यहाँ पे क्या क्या चीजें कॉमन है स्टूडेंट्स? दोनों साइड में वी हैव 7s कॉमन. 7 को हम बाहर ले लेंगे और बाकी सारी चीजें जो है ब्रैकेट में पुट इन कर देंगे, दैट इज x minus 6. तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया स्टूडेंट्स. So students, I have done a lot of sum in this whole annual assessment. The rest of the sums you have to try by yourself.
Okay, thank you students, take care of yourself.